Hello students, welcome back to maths class. In the previous video we have completed exercise 3.2 of class 8th. Now it's time to start exercise 3.3. So before starting the exercise 3.3 we are going to learn some terms related to exercise 3.3. So first term is quadrilaterals, because chapter is quadrilaterals, understanding quadrilaterals. So without understanding quadrilaterals how chapter can be complete. So quadrilateral means what? Quadrilateral means polygon with 4 sided and 4 vertex. ऐसा पॉलीगॉन जिसके पास 4 साइड होगी और 4 वर्टेक्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? quadrilateral. So simple quadrilaterals that we are learning from the small classes, that is square and rectangle, they are the simple, because we already know in that figures we have 4 sides and 4 vertex. So what is new in the class 8th? The new in class 8th is trapezium. Trapezium, it is a quadrilateral with a pair of parallel side. ऐसा फिगर जिसके पास पैरेलल साइड का क्या हो? एक पेयर हो. तो देखो फर्स्ट ए वाले फिगर में इन द ए बी एंड सी वी हैव ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एंड दे आर अपोजिट. पैरेलल मीन्स अपोजिट लाइन, दे डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर. अच्छा, अब इस वाले फिगर में ये सामने वाली जो एरो लगा है ये शो कर रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल. सेम बी में भी ये टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. इन दिस सी the front two lines are parallel to each other, but the remaining sides of the figures does not parallel to each other. So in this figure we have one pair of parallel line, so that figure will call trapezium. Now the next quadrilateral is kite. Kite is a special kind of quadrilateral. In this we have consecutive pairs of equal length. देखते हैं कैसा होता है. A kite is a four side. It is a quadrilateral. There are exactly two distinct consecutive pairs of side of equal length. अच्छा, अब होता क्या था कि हमारे पास स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती थी, रेक्टेंगल में हमारे आमने सामने की साइड्स क्या होती थी? इक्वल होती थी और पैरेलल होती थी. बट क्वाड्रिलेटरल काइट में क्या होता है हमारे पास? काइट में हमारे पास पास की साइड्स, इट मीन्स एडजेसेंट साइड क्या होती है? इक्वल. एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? इक्वल. But the only property is there, it is a 4-sided figure and 4 vertex figure. That's why kite is in the quadrilateral group. But its adjacent sides are equal. देखो यहाँ पर A, B और AD क्या है? इक्वल है. बट पैरेलल होनी चाहिए थी. अगर हम देखते हैं जैसे स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है, पैरेलल भी होती है. तो यहाँ पर पैरेलल है क्या? नहीं, यहाँ पर पैरेलल वाली नहीं है. यहाँ पर एडजेसेंट वाली एक दूसरे के क्या है? इक्वल है. सो इट इज़ अ डिफरेंट काइंड. Something different is in the kite, but it is also called a quadrilateral. Now the new and the important part of the chapter is parallelogram. Parallelogram, we already know the opposite sides are parallel. A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Opposite means it means जो हमारे सामने हैं, those kind of sides are parallel in this kind of figure. So I drawn some figures, 3 figures for the example. We will see how their figures. In this figure their lines are parallel to each other. So firstly we have the figure A, B, C, D. In this figure if you are seeing the properly, now the AB, the opposite of AB is DC. तो अगर पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम की AB पैरेलल होगी DC के या फिर CD के, हम कुछ भी बोल सकते हैं. AB इज पैरेलल टू CD. अब ये तो हो गया फर्स्ट पेयर. अब दूसरा पेयर भी होना चाहिए. दूसरा पेयर क्या है? BC इज पैरेलल टू AD. हाँ है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पैरेललोग्राम. स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम बिकॉज PQ इसके सामने वाला इसका पैरेलल दिख रहा है SR या RS. ऐसे ही QR इज पैरेलल टू PS. ओके. नाउ द थर्ड फिगर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. LM इज पैरेलल टू NO and MN is parallel to LO. So they are the parallelogram example. Now the elements of parallelogram. अब पैरेललोग्राम पढ़ रहे तो पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स भी पढ़ना पड़ेंगे. तो एक मैंने रफ स्केच बनाया. अब कभी भी एक बात हमको हमेशा याद रखनी है कि अगर हम कोई भी पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उसकी अगर नेमिंग करते हैं तो एक सीक्वेंस में करते हैं. जैसे कि अगर यहाँ पर आप पैरेललोग्राम देखोगे तो इसके सीक्वेंस में नेमिंग कैसी है? इसके वर्टेक्स की A, B,
सी डी, या फिर इसको ऐसा भी रख सकते थे ए बी सी डी। या तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे या तो क्लॉकवाइज चलेंगे, बट ऐसा नहीं कि ए के सामने बी रख दिया, फिर कहीं सी रख दिया, फिर कहीं डी रख दिया, ये नहीं करेंगे हम बिल्कुल लाइन से नेमिंग करते हुए जाएंगे वर्टेक्स की। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का सबसे पहले कोई सी भी साइड उठा लेते हैं, मान लीजिए मैंने उठा लिया ए बी, तो ए बी के अपोजिट कौन सी साइड दिख रही है, सी डी बोल सकते हैं या डी सी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पेयर मिला हमको ए बी इज इक्वल टू सी डी, सो ये फर्स्ट अपोजिट साइड का पेयर मिला। लेकिन अभी भी एक और है, क्या है, बी सी। बी सी इज इक्वल टू ए डी या फिर डी ए बोल सकते हैं। ओके, दे आर इक्वल एंड एज वेल एज दे आर पैरेलल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल्स। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो ए के अपोजिट कौन सा दिख रहा है हमको, ए के अपोजिट हमको दिख रहा है, जस्ट अपोजिट देखेंगे तो उसके सामने कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है। एंड बी के जस्ट अपोजिट देखेंगे तो बी के अपोजिट में कौन सा दिख रहा है, डी दिख रहा है। सो दे आर अपोजिट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट, and the next pair is angle B and angle D are opposite angles. Now adjacent side. Third element of the parallelogram is adjacent side. Adjacent को मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ जस्ट नीबर, मतलब एक का घर, जैसे कि बोल सकते हैं एक का घर खत्म हुआ तो किसी दूसरे का घर क्या होता है, शुरू होता है, बिल्कुल उसका पड़ोसी। तो वैसे ए बी लाइन जहाँ पे खत्म हुई वहाँ से अगर दूसरी लाइन शुरू होती है तो वो क्या हो जाती है, उसकी एडजेसेंट। ठीक है, तो देखते हैं एडजेसेंट के पेयर कौन कौन से हैं हमारे पास। तो एडजेसेंट फर्स्टली हमारे पास है ए बी का एडजेसेंट कौन कौन सा है, बी सी, क्योंकि जहाँ पे ए बी खत्म हुआ वहाँ से बी सी क्या हो रहा था हमारा शुरू। तो ए बी एंड बी सी, ये मिला फर्स्ट पेयर। अब बी सी हो गया, अब बी सी से चेक करते हैं। बी सी जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ से कौन सा शुरू हो रहा था, सी डी, तो ये रहा सी डी का पेयर। अभी भी है, सी डी को देख लेते हैं हम। अब सी डी जहाँ पे खत्म हुआ था उसके बाद वाला कौन सा था, डी ए, और अब जहाँ पे डी ए खत्म हुआ था डी ए का पड़ोसी कौन सा है, ए बी। सो दे आर द एडजेसेंट साइड्स। नाउ द एडजेसेंट एंगल, सेम एज द एडजेसेंट साइड वी हैव द एडजेसेंट एंगल्स। लाइंस के दोनों कॉर्नर पे जो जो बैठे होंगे वो हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। तो देख लेते हैं ए, जो हमारी ए बी लाइन सेगमेंट है उसके दोनों कॉर्नर पे सबसे पहले दोनों कौन कौन से एंगल्स बैठे हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, तो दे बोथ आर एडजेसेंट। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, बी सी पर एडजेसेंट कौन कौन से हैं, एंगल बी एंड एंगल सी। सी डी पर एंगल सी एंड एंगल डी। एंड लास्टली ऑन द डी ए व्हाट वी हैव एंगल डी एंड एंगल ए एज अ adjacent. So these are the elements of a parallelogram. Now properties of parallelogram. So when we are solving the questions of exercise 3.3, on that time we have to use the properties of parallelogram. So we have to know which property we have to apply. So in the exercise we have 4 properties that we have to apply related to parallelogram. First is the opposite side of a parallelogram are of equal length. It means किसी भी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल। अब आप देख सकते हो पैरेललोग्राम एक है हमारे पास जिसका मैंने रफ स्केच बना के रखा हुआ है, ए बी सी डी। तो जो ब्लू है, जैसे कि जो मैंने स्केच पेन से अलग से मार्क करके रखा है, ये ब्लू ए बी एंड सी डी, दे आर अपोजिट एंड दे आर इक्वल। सो फर्स्ट पेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी। वाई? Because the opposite side of a parallelogram are of equal length. This is first pair, but one more pair we have, that is BC is equal to DA, या तो DA बोल सकते हैं या AD कुछ भी बोल सकते हैं। So they are equal, they are opposite sides and they are equal according to the property. Next property is the opposite angle of parallelogram are of equal measure. इट मीन्स अपोजिट को अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट मीन्स जो मेज़र P का होगा वही मेज़र किसका होगा, R का। जो मेज़र Q का होगा वही मेज़र किसका होगा, S का। सो देखो आपको रेड मार्कर से समझ में आ जाएगा कि रेड वाले इक्वल है और ब्लू वाले इक्वल हैं। सो वी कैन राइट एंगल P इज इक्वल टू एंगल R
and angle S is equal to angle Q. Which property is there? The opposite side of a parallelogram are of opposite angles of parallelogram are of equal measure. Okay. Now the third property is the adjacent angles in a parallelogram are supplementary. Supplementary means what? Supplementary means we have the measure of 180 degree. Okay. So adjacent angles, अब adjacent angles कौन से होते हैं? जो एक साइड के दोनों कॉर्नर पर बैठे होते हैं, जो एक साइड के दोनों कॉर्नर पर बैठे होते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स पर. So the adjacent angles in a parallelogram are supplementary. It means whenever we add the end point angle, so their sum will become 180 degree. तो अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास हैं. पैरेललोग्राम बना के रखा था MNOP. तो सबसे पहले MN वाली साइड पर चेक करते हैं. MN साइड वाली साइड पर हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं? एंगल M प्लस एंगल N. ये फर्स्ट था. देखो यहाँ के दोनों के एंड पॉइंट उठा लिए तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री. ऐसे ही NO पर जाएंगे तो NO के दोनों एंड पॉइंट के एंगल कौन कौन से हैं? एंगल N, एंगल O. इन दोनों का भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. सेम एज OP, एंगल O प्लस एंगल P will also give us the 180 degree, and the last is angle P and angle M will give us the 180 degree. From the property the adjacent angles in a parallelogram are supplementary. ठीक है. Now the last property is fourth number property. The diagonals of a parallelogram bisect each other. किसी भी पैरेललोग्राम के अगर हम डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, वन मोर थिंग्स इज देयर. आप देख सकते हैं A एंड C क्या है? डायगोनल है. वैसे ही B एंड D क्या है? डायगोनल है. तो जहाँ पर आप मैंने इंटरसेक्शन जो कर रहे हैं उसका पॉइंट मैंने क्या दिया है? O. इट मीन्स अगर मैं A से O तक जाऊँगी तो इसका जो मेज़र है वो बिल्कुल सेम टू सेम इक्वल मेज़र होगा O से C तक का. ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि हमने A C को 2 पार्ट में डिवाइड करा तो बराबर 2 पार्ट में ही डिवाइड होगा. ऐसे ही जो B से O तक जाऊँगी तो उसका मेज़र भी बिल्कुल इक्वल निकलेगा O से D तक जाने पर. सो हेयर वी कंप्लीटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. We are learning the parallelogram. So parallelogram is made up by the line segment. So we have to recall the previous property that we learn in the class 7th. So what with the properties? Lines and angles. I think you remind that which property we learn after seeing. First is vertical opposite angle, interior angle, exterior angle, alternate interior angle, alternate exterior angle, corresponding angle. तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. देखो यहाँ पर L एंड M आपको दिख रहा होगा कि क्या है? पैरेलल लाइन है. और N क्या है हमारे पास? ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल उस लाइन को बोलते हैं जब कोई पैरेलल लाइन टू सेट्स, किसी भी सेट के पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है, कोई लाइन कट करती है तो जो लाइन कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. तो जल्दी से जहाँ जहाँ पर हमको एंगल दिख रहे हैं वहाँ पर एंगल के नेम रख लेते हैं. आपको पता होगा दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2. मैं एंगल का सिंबल नहीं बना रही हूँ, सिर्फ नाम लिख रही हूँ. एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इट मीन्स एक दूसरे के जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है उसके ऊपर नीचे वाले. इट मीन्स 1 के नीचे कौन सा दिख रहा है? नीचे देखना, उसके सेम साइड पर नहीं देखना. इट मीन्स 1 के नीचे क्या दिख रहा है हमको? 4 नहीं, 1 के नीचे हमको क्या दिख रहा है? 3. 2 के नीचे क्या दिख रहा है? 4. जैसे आप जब उसको अपोजिट करके इस फिगर को थोड़ा सा सीधा करके देखोगे तब आपको क्या दिखेगा? 1 के नीचे वर्टिकल अपोजिट हमारे लिए क्या होगा? 3. 4 नहीं होगा, 1 के नीचे 3 है. तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ये ऊपर वाला सेक्शन हुआ. नीचे वाले सेक्शन में भी ऐसे ही होगा. एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल 7. और एंगल 6 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल 8. नाउ द इंटीरियर एंगल. इंटीरियर मीन्स इनसाइड द फिगर. इनसाइड द फिगर विच एंगल्स वी कैन सी? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. एक्सटीरियर एंगल इट मीन्स फिगर के जो बाहर है, मतलब जैसे कि यहाँ पर फिगर के अंदर वाले थे, अब फिगर के बाहर वाले चेक करने हैं. सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. नाउ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्या बोला? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एक वर्ड आया इंटीरियर, इट मीन्स हम अंदर ही अंदर देखेंगे. इंटीरियर मीन्स एक इस तरफ का और एक उस तरफ का. ओके एक इस तरफ का, एक उस तरफ का. इस चीज़ से याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा. अल्टरनेट में तो एंगल 4
का जो मेज़र होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। ऐसे ही एंगल 3 का जो मेज़र होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। इंटीरियर बोला इसलिए इंटीरियर में चेक करेंगे। अब एक्सटीरियर की बात होगी तो अब एक्सटीरियर में चेक करेंगे। तो अब एक्सटीरियर में मैं इंटीरियर वाले को क्या कर लेती हूँ, छुपा लेती हूँ। देखो छुपा लिया। तो 1 का एक इस तरफ और 1 का उस तरफ वाला कौन सा दिख रहा है, एक्सटीरियर में 7 दिख रहा है। सो ये रहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। सेम एज एंगल 2 का एक्सटीरियर में कौन सा दिख रहा है, एंगल 8। एंड लास्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कुछ नहीं करना बेटा, मत कंफ्यूज होना आप लोग। ये जो पोर्शन है इसको ऐसा का ऐसा उठा के रखना नीचे वाले पर। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इस वाले पोर्शन को ऐसा का ऐसा उठा के रखना नीचे वाले पर। तो 1 किसकी प्लेस पे जाके बैठेगा, 5 की प्लेस पर। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल। 2 किसके ऊपर जाके बैठेगा, 6 के ऊपर। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 किसके ऊपर जाके बैठेगा, एंगल 8 के ऊपर। एंड एंगल 3 किसके ऊपर जाके बैठेगा, एंगल 7 के ऊपर। सो here we completed all the properties related to exercise 3.3. In the next video we will begin our exercise 3.3.